uh, bigger size, and it has more surface area or volume compared to what they are occupying. Ultimately, the molecule becomes less to insoluble in water. Less to insoluble in water. ठीक है? That is where they have to settle as colloidal solutions. They cannot further disintegrate into water, या फिर दूसरा रीजन ये भी रहता है कि इनका सेल साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है. ठीक है. सॉल्यूशंस वगैरह बनने के लिए पार्टिकल साइज जो होनी चाहिए वो अल्टीमेटली छोटी हो जानी चाहिए आपकी टूट टूट करके, so that you can adjust in between the interparticle spacing of water molecules, right? तभी आपका परफेक्ट सॉल्यूशन बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता. अगर आपका साइज छोटा नहीं हो सकता तो यू कैन नॉट गेट डिसॉल्व्ड इनटू इट. और दे आर अनफॉर्चुनेटली ऑफ बिगर साइज, दे कैनॉट फ्रेगमेंट. ठीक है. सॉल्यूशन फॉर्मेशन के टाइम पर दे कैनॉट फर्दर फ्रेगमेंट, एंड देयरफॉर they do not form solutions. They form colloidal solutions we will form. So they are going to form colloidals. Anyway, the details of colloidals are going to follow in some time from now. Okay, very effective catalysts catalyze numerous reactions, especially those connected with natural processes. Numerous reactions that after enzymes are termed as biochemical catalysts, and the process is known as biochemical catalysis. Enzyme catalysis. Enzymes are biochemical catalyst, right? And biochemical catalysis. So ये दो words हम लोग note कर लें. Just keep on noting the key words. जैसे enzyme catalysis. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds having high molecular mass and forms colloidal solution in water, also known as biochemical catalyst, leading to biochemical catalysis. ठीक है. Yes, sir. Okay. Many of them have been obtained in pure crystalline state from living cells. However, first enzyme was synthesized in laboratory in 1969. I don't know. Let me check. Okay, that's not important for us. But still. सर बोलिए ना. मेरा एक डाउट था लास्ट पार्ट का. तो ओल्ड थियरी में मॉडर्न थियरी है, तो डिफरेंस कैसे? दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब जैसे उसने स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया है. हाँ. हम ज्यादा अरे डिफरेंस वही है. मॉडर्न थियरी में एलिमिनेशन वाला जो पार्ट है ना वो ऐड किया गया है. ओल्ड थियरी में एलिमिनेशन वाला पार्ट जो है, सर्विस लिविंग पार्ट, डिटैचमेंट वाला पार्ट, दैट इज नॉट देयर ना. अच्छा, डिसॉर्प्शन वाला पार्ट. हाँ, हाँ. ओके. मोर और लेस दोनों सेम ही है. ओल्ड थियरी के वो मॉडर्न थियरी में we made it more look natural.
ठीक है, आया, रुका, इंटरेक्शन हुआ, फिर उसके बाद एक पार्ट निकल गया और एक पार्ट की एनर्जी की वजह से दूसरा पार्ट भी निकल गया, डिसऑप्शन हो गया. So it creates a more sequential and more acceptable explanation. Okay, ribonuclease. The name is ribonuclease. This uh, enzyme catalyzed reactions, inversion of cane sugar invertase, inversion of cane sugar invertase, cane sugar converts into glucose and fructose. ठीक है, तो ये चीज नोट करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस. हम यहाँ तक नोट करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हुआ, प्योर क्रिस्टलाइन may exist in pure crystalline state, may exist in pure crystalline state, may exist in pure crystalline state for synthetic enzyme ribonuclease 1969. Synthetic or laboratory made? Laboratory. Then examples of enzyme catalyzed ठीक है, और फर्स्ट वन being inversion of sugar, inversion, और इसमें सिर्फ ये की रिएक्शन जो है ना, ये वाला पार्ट नोट करना है हम लोगों को. इज दैट ओके? ये पॉइंट्स नोट कर लिए या नोट हो गए थे पहले से? शुड आई क्लियर इट? एक सेकंड खाली मुझे ये रिबोन्यूक्लियस मुझे नोट कर देने का इन नोट्स में. So invertase
केन शुगर टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंसेस होते हैं? महेश, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में? आइसोमर्स होते दोनों। दोनों आइसोमर्स होते हैं। कैसे आइसोमर्स होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है। ठीक। um, ये glucose fructose invertase is going to convert this cane sugar into glucose and fructose। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो glucose is going to look something like this। क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, क्या हुआ? तो दिखाने रहा तो ड्रॉ कर दी। हाँ, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। लाइन स्ट्रक्चर जो होता है इनका, और ये आइसोमेरिज्म वगैरह तो मैं जानिस जानिस यस और ये प्रोजेक्शंस आपको पता है? If I'm writing a horizontal line, what does this mean? यस सर पता। ठीक है, चलेगा। So यहाँ पर बेसिकली एक कार्बन है which is attached to one O, this is CH, there is OH, HOH, OH, OH, then we again have CH2OH. This is our glucose and fructose जो होगा वो हो जाएगा CH2OH, double bond O। ठीक है, that is glucose, this is fructose। यहाँ पर ये केटोन ग्रुप है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केटोज। दिस इज aldehyde group which is there in this polyalcohol and aldehyde, so this is called aldose। So this is an example of aldose sugar, this is an example of ketose। ठीक है,
एंड बेसिकली इनका फर्दर साइक्लाइजेशन भी होता है, तो इट कैन टेक प्लेस हियर टू हियर, इस वाले केस, यहाँ वाले केस हैपन फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है। एक सेकंड, दो, तीन, चार, पाँच, sorry, it will happen from here to here. दो, तीन, यहाँ है एक, दो, तीन, चार, ये यहाँ से और ये यहाँ से साइक्लाइज करता है। ओके, अल्डिहाइड कार्बोनिल वाले में आपने एक रिएक्शन अभी रिसेंटली पढ़ा होगा, ध्यान है, अल्डिहाइड एंड केटोन्स जो होते हैं, केटोन, ये वाटर के साथ पार्शियल इंट्रैक्शन, मतलब ये हाइड्रेट एंड डिहाइड्रेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। दे कैन अटैच विथ वाटर and upon reverse conditions they can also like lose that water. So basically एक कार्बन के ऊपर जब भी दो OH आ जाते हैं, so in general circumstances this will dehydrate, leaving behind water in form of carbonyls, right? By understandable circumstances we can also add the water into it to form dihydroxy group. Is that okay? Yes, sir. तो उसी टाइप का एक अटैचमेंट यहाँ पर भी होता है। ये पॉजिटिव आयन रहता है, ये इसको डिस्कार्ड करता है, ये इट रिएक्ट्स विद दिस, ये ओपन अप होता है, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर ओपन अप होता है, लोन पेयर के प्रेजेंस में ये इंटरैक्ट करता है और डबल बॉन्ड ओपन अप होता है, द रिएक्शन प्रोसीड्स। एक साइड का डिटैचमेंट भी हो, एक ये डिटैच भी होएगा, OH जो है हमारा पोलराइज होकर के H प्लस लेकर के H2O बन के निकलेगा, प्लस साइड बनेगा, प्लस साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड ओपन करेगा, यहाँ पर प्लस बनेगा तो ये वापस से H2O से ले लेगा OH। ठीक है, सो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। एनीवे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स जो है दे आर सीरीज ऑफ अल्डोज एंड केटोज, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के, 6 नंबर तक के जितने वेरिएशन है 6 वाले वो सारे भी हैं। आई हैव दैट लिस्ट, सो आई विल सेंड इट टू यू अलोंग विथ दिस, देयर आर अदर डिटेल्स। ठीक है, inversion of sugar, invertase, conversion of glucose into ethyl alcohol, that's glucose to ethyl alcohol, and the
enzyme is zymase, glucose to ethyl alcohol, and the enzyme is zymase. Or invertase, cane sugar to glucose and fructose, zymase, glucose to ethyl alcohol, diastase, starch to maltase. और अच्छा, ये चीजें आपको बायो में भी पढ़नी होंगी ना? यस सर। ठीक है, और 11th में था, 12th में था? सर अभी रहेगा 12th में। तो सर ने पढ़ा दिया है कि अभी पढ़ाना बाकी है? सर वही चैप्टर चालू है। अच्छा, वही चैप्टर चालू है, ठीक है, फिर मेरा काम आसान कर दिया रणविजय सर ने। नहीं, ये याद रखना पड़ेगा तुमको, और मेरे लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा। और एनीवे, स्टार्च टू माल्टोज, ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल जाइमेज, स्टार्च टू माल्टोज डायस्टेज, maltose to glucose maltase, maltose to glucose maltase, urea to ammonia urease, urea to ammonia urease. Then we have these two things: pepsine converts protein into peptides, while in intestine pancreatic trypsin protein into amino acid. ठीक है, pepsine protein to peptides, protein to peptide, pepsine, and protein to amino acids, that's trypsin. ठीक है, conversion of milk to curd, milk to curd, sorry, milk to curd, that's Bacilli enzyme. ठीक है, ये हो गया। इधर वाले नहीं लिखे हैं, इसमें ये वाले पार्ट को नोट करना है आपको, सिर्फ यूरिया टू अमोनिया यूरेज, maltose to glucose maltase, that's it. Invertase source is yeast, gymase it's yeast, diastase it's mast, maltase yeast, urease soybean, pepsine stomach. यार ये टेबल भी है, बोलो। एक काम करो, आप लोगों ने ये ऊपर में नोट किया होगा ना, ये वाली चीजें नोट करी है ना? यस और नो? किया ना? फॉर एग्जांपल इन्वर्टेज जहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाकी सारे इंफॉर्मेशन हमने कवर किए हैं। इन्वर्टेज के ऊपर में ब्रैकेट में ये ईस्ट वाला जो इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द सोर्स, ब्रैकेट में ऐसे ईस्ट लिखा, इन्वर्टेज लिखा हुआ होगा आपने यहाँ पे ऊपर में ईस्ट, दे आर द सोर्स। सो सारी चीजें, बाकी चीजें आपने कवर कर रखी हैं।
This will also get covered at one place. Is that okay? Invertase yeast, Gymnase yeast, diastase malt, maltase yeast, urease soybean, pepsin stomach. Uh, See, these are information points, और information points को हमेशा एक जगह पे क्लब करके रखना चाहिए, so that एक चीज देखने से आपको maximum informations एक ही जगह पर मिल जाए. वो जितना अलग अलग फैला रहेगा, it will create trouble. लास्ट में रिवीजन के टाइम पे, सो इंफॉर्मेशंस एक जगह पे क्लब रखने चाहिए. दैट्स द वे, आई मीन दैट मेक्स योर रिवीजन फास्टर एंड इनफैक्ट प्रिसाइज ऑल्सो, क्योंकि थियोरेटिकल चीजें जो होती हैं, डेरिवेशन जो होते हैं, वो एक दो बार में ध्यान में आ जाते हैं, इनको थोड़ा बार बार देखना होता है. ठीक है, सो अगर बार बार देखनी है तो वी नो कि प्रिसाइजली यहाँ पर अगर एक साथ मेरे सारे इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, it becomes easier, you know, कि you just have to look at these 4 5 7 10 जितने भी वो इंफॉर्मेशन पेजेस हैं, उतने को ही देखना है मुझे. So that's how it becomes easier to handle them. Okay, next segment is, ये नोट कर लिया हम लोगों ने सोर्सेस को. Yes, sir. Okay. Characteristic of enzyme catalysis is unique in its efficiency and high degree of specificity. Specificity का मतलब, I mean, it's very particular about मतलब एंजाइम है तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही या एक पर्टिकुलर प्रोसेस को ही इनिशिएट करता है. प्रोसेस को इनिशिएट करने का मतलब obviously reactions को initiate करता है. Processes are end of the day reactions happening inside our body. तो they have enzymes have high efficiency and high degree of specificity. It's not like one enzyme is going to act on something else or to do some other process also side में ये भी कर दिया. That's not possible. They are highly efficient, most highly efficient. One molecule of enzyme may transform 1 million molecules of reactant per minute. So it's highly efficient, most highly efficient, yeah, just highly efficient, highly specific in nature. Each enzyme is specific. ये details नहीं note करने हैं आपको, सिर्फ ये keyword note करना है. This will come into your mind one or the other way. Enzymes is specific for a given reaction. One catalyst cannot catalyze more than one reaction. For example, urease catalyzes hydrolysis of urea only. It does not catalyze hydrolysis of any other amide. ठीक है? They are highly active under optimum temperature conditions. There is like enzymes के साथ में obviously ये होता है, under certain range of temperatures they are most active. ठीक है? Because of n reasons, उनके sizes उस temperature zone में या उनका 3 dimensional shape उस temperature zone में most intact रहता है, या जो most suitable shape चाहिए in order to initiate that process, वो shape उनका उसी temperature zone में होता है. It's like चाबी जो है ना, कीज होते हैं ना हमारे, ठीक है? Yes, sir. अब की को समझो कि अगर लोहा को मैंने, वो स्टील होता है, उसको गर्म कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? मतलब जिस ताले की भी वो चाबी हो, 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट होने के बाद क्या उस ताले को वो खोल पाएगा? नहीं. व्हाट डू यू थिंक? नहीं खोल No, sir. पाएगा. क्यों नहीं खोल पाएगा? है बंद तो हो जाएगा ना. है तो उसी का चाबी ना, बट नहीं खोल पाएगा क्योंकि उसके डायमेंशंस चेंज हो गए रहेंगे. ठीक है? कट मार्क्स जो उस पे होते हैं, स्पेसिफिक कट मार्क्स, उनके साइप एंड सेप, सॉरी सेप तो नहीं, बट
साइजेस चेंज हो गए रहेंगे जिसकी वजह से वो नहीं ओपन कर पाएगा, उसी ताले का चाबी है वो, बट इट विल नॉट बी एबल टू ओपन इट. Same thing happens to catalyst also. Temperature change होने पे their size will get deformed, and not safe but the size will get deformed, and वो specific nature फिर उनका नहीं रह जाता है, and they cannot operate. वो specific nature गया, वो specific shape and size अगर उनका distort हुआ, then their effectivity will be over. ठीक है. Effectivity over का मतलब they will be inactive. Inactive as in they cannot initiate the further states. मतलब रूम का ताला खुला नहीं तो हम लोग रूम के अंदर नहीं आ सकते हैं, राइट? चाबी के गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड हो गया, ताला खुला नहीं तो हम घर के अंदर नहीं आ सकते. सेम इज देयर, वो उसके साइज के डिफॉर्म होने की वजह से अगला स्टेप नहीं कर पाया तो पूरा प्रोसेस ही रुक गया. ठीक है, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट वही था, उसका खुद का एक्शन. That happens on either side of the temperature. It's called optimum temperature. Enzyme activity decreases. रेंज से बाहर निकलते हैं, अगर हम ज्यादा बाहर निकलते हैं, it stops, not decreases, it stops. Optimum temperature range of enzymatic activity is 298 to 310 Kelvin. Is suited for enzyme catalyzed reactions. Is most suited for enzyme catalyzed reactions. ठीक है. So you have to take this point only. Highly active under optimum temperature range. ठीक है. That's your key part. Highly active under optimum pH. So yes, they are highly active under optimum pH. फॉर द सिंपल रीजन कि वो उनका बेसिस जो होता है ना, वो ये होता है कि बेसिस एज इन व्हाट आर दे, व्हाट आर एंजाइम्स. ठीक है, बेसिक्स में अगर हम जाते हैं एंजाइम्स के, तो वी हैव जस्ट सीन कि दे आर एमिनो एसिड्स, राइट? अब एमिनो एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है? इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? इट्स अ वीक एसिड, राइट? तो यस सर. अभी प्रॉब्लम ये है कि अब है वो एसिडिक, तो अगर मेरा मीडियम बेसिक हो गया तो दैट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विथ आवर बेस. उसका एसिडिक नेचर की वजह से अगर बेस हमने डाल दिया तो वो हमारे बेस के साथ रिएक्ट करने लगेगा. और अगर हाईली एसिडिक मीडियम कर दिया हमने तो वो प्रोटोनेट होने लगेगा, राइट? लोन पेयर एन के ऊपर जो रहेगा या ओ के ऊपर जो रहेगा वो प्रोटोनेट होने लगेंगे, एन और ओ दोनों प्रोटोनेट होने लगेंगे अगर हमने हाई एसिडिटी कर दी तो. ठीक है. सो दे विल exist in their original shape or molecular shape, not in ionized shapes or form, in only ambient pH levels. ठीक है. Ambient pH level पर ही they are going to exist in their molecular form, or majority of them will exist in their molecular form only when they are in this a particular pH zone. ठीक है. अगर उससे ज्यादा होगा तो भी रिएक्ट कर जाएंगे, अगर कम होगा तो भी रिएक्ट कर जाएंगे. एसिडिक हो गया हाईली तो भी रिएक्ट, बेसिक हो गया तो भी रिएक्ट. ठीक है. रिएक्ट कर गए तो फिर वो अपनी नेचर को लूज कर देंगे. दे विल नो मोर रिमेन एंजाइम्स, द एंजाइम्स वी वांटेड, और द एंजाइम्स which can trigger the next step of next step of reactions. Is that okay? यस सर. Ambient value is 5 to 7, not so important to remember. Increasing activity in presence of activator and coenzymes.
Their activity is increased in presence of certain substance known as coenzymes observed when a small non-protein is present. A small non-protein is present along with enzyme, the catalytic activity enhanced considerably. Okay, so vitamin, vital amines, though they don't have to do anything with amine, that is uh, इस कंपाउंड से इनका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता है. Vitamins are pure uh, acids. They are just acids, one or the other. कोई स्कॉर्बिक है, कोई दूसरा है, तीसरा है रेटिनॉल, या तो एसिड है या अल्कोहल ग्रुप्स होते हैं विटामिन. दे आर नॉट अमाइड्स, ठीक है ना. विटामिन्स आर नॉट अमाइंस और अमाइड्स. एनीवे, स्टिल दे आर कॉल्ड वाइटल अमाइंस बिकॉज ये इन एंजाइम्स को हेल्प करते थे. और हमारा इनके साथ पहला इनकाउंटर जो था वो इसी फॉर्मेट में था. हमें लगा कि वो अमाइन है तो ये भी अमाइन होंगे, वाइटल अमाइन. That's how they become vitamins. Anyway, nevertheless, visit on the faces of, I mean, again, keys के ऊपर डिफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है. कीज के जो शेप बने हुए हैं, हमारी की जिससे हमने अपना लॉक खोला, उसके शेप को किसी तरीके से हमने डिफॉर्म कर दिया. इफ आई एम गोइंग टू पुट अ टफ मटेरियल, जैसे ये वाला अगर शेप है मेरा खाली सा, और यहाँ पर एक छोटा सा कोई दाना फंसा दिया मैंने, राइट, विल इट बी एबल टू ओपन? नेवर. और ये ऑब्वियसली टफली थोड़ा सा मतलब पैक करना है मुझे इस स्पेस को. अगर पैक कर दिया तो इट विल नो मोर रिमेन द की एंड इट कैन नॉट वर्क द सिमिलर वे. ठीक है ना. सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर. इनहिबिटर का काम होता है जैसे PDSO4 या BaSO4 on PD, right? बैरियम सल्फेट. थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रिडक्शन ऑफ इथिलीन टू ethene, right? हाँ. So we had poisoned PD with BaSO4. Is that okay? So similarly poisoning यहाँ पर भी काम करती है. Catalyst भी जो है they can get poisoned. Mechanism of enzyme catalysis, cavities present and characteristic shape possesses active groups such as NH2, COOH, SH and OH. So they are going to have these active groups. They have characteristic shape. So these are two key things to their activity. Okay. They have characteristic shapes because of which they act as specific catalyst. It's active site, enzyme catalyst. This is called like it's keyhole theory. इनका specific shape जो होता है that is important for this the process to move forward. ठीक है. Enzyme plus substrate, this complex, this leads to breaking down of enzyme and product. Enzyme and product. It happens exactly in this way. The molecule of reactant which have complementary shapes fit into these cavities just like a key into a lock.
On account of presence of active group, an activated complex is formed, which then decomposes to yield the product. This enzyme catalyzed reaction may be considered to proceed in two steps: binding of enzymes to substrate to form an activated complex, and then decomposition of activated complex to form product. E plus is ES star to E and P, enzyme and product. Uh, ठीक है. Next thing is catalysts used in the industry. Some of the important technical catalysts, catalytic processes are listed below. One is Haber process, uh, finely divided iron, molybdenum as promoter, 200 bar pressure, 722 to 773 temperature. Iron, molybdenum as promoter, 200 atm or 200 bar pressure, 723 to 773, approximately 500, 450 to 500 degrees Celsius temperature. 450 to 500, 723 to 773. Second, Oswald's process for nitric acid manufacturing, ammonia, O2, these things are there. It's planetized as asbestos. Planetized asbestos, and temperature is 300 degrees Celsius or 573 Kelvin. Ammonia reacting with oxygen to form nitrous oxide, nitric oxide, NO nitric. Then NO is reacting with oxygen to form NO2 dinitrogen oxide. Sorry, dinitrogen pentoxide. खैर ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ये NO2 के फॉर्म में रहता नहीं है, N2O4 बनता है. This then reacts with water to form uh, nitric acid. थर्ड वन इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं हमारी लाइफ के लिए, जेई लाइफ के लिए. वी मस्ट नो इट. और इनके डिटेल्स भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के टाइम पर हमको पढ़ने होते हैं. ये तीन तो हमको जानना ही पड़ेगा और इनके कैटलिस्ट हमको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. सल्फर dioxide getting converted to trioxide, trioxide reacting with H2SO4 to form oleum, oleum treated with water forming again H2SO4. ठीक है. Planetized asbestos or vanadium pentoxide, planetized asbestos or vanadium pentoxide, temperature 673 to 723 Kelvin. 673 to 723. ठीक है. अरे आप लोगों को फर्स्ट वाले दिन जब मैं पढ़ाया था, आई हैड गिवन समथिंग टू रीड. आई बिलीव पढ़ा था क्या हम लोगों ने बाई एनी आपने चांस? कल बोला था रीड करने को. अरे नहीं, पहले भी बोला था. खैर दिखाता हूँ. क्या बोला था? एक तो प्रोसेस था कोई, उसको पढ़ने की. आई रिमेम्बर मैंने बोला था, मैं बता देता हूँ क्या था. इस पे लिख रखा था मैंने. हाँ,
लेक टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नस टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम, एडजॉर्प्शन बेस्ड टेस्ट किया था हम लोगों ने, पढ़ा था, कोशिश करी थी। मैंने मैग्नीशियम देखा था। क्या क्या? मैंने मैग्नीशियम वाला देखा था। हाँ तो बेसिकली वेस्ट था उसका। ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, उसमें होता क्या है ये पता है चला आपको? एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी, इसका भी आंसर ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है? ये दोनों इजी है, यू नो ऑलरेडी। ईस्टर हाइड्रोलिसिस में फास्टर क्यों हो जाएगा आफ्टर सम टाइम? ईस्टर हाइड्रोलिसिस कैटेलाइज कैसे होता है? एसिड से, ठीक है? एसिडिक मीडियम से। हाँ, और ईस्टर के हाइड्रोलिसिस के बाद भी एसिड बनता है, हाँ। तो मीडियम इज गेटिंग मोर एसिडिक मतलब मोर कैटेलिसिस, ठीक है? हम्म। रोल ऑफ डिसॉल्प्शन इन प्रोसेस ऑफ कैटेलिसिस, डिसॉल्प्शन का क्या रोल रहेगा? हाँ तो न्यू साइड के लिए क्या? वो एक्चुअली जब डिसॉल्व हो जाएगा तब न्यू पार्टिकल्स को जगह मिलेगी, मतलब न्यू राइट पार्टिकल्स को राइट, बनेगा। प्रोसेस को रिपीट करने के लिए जगह खाली होनी चाहिए ना। तो मुझे फोटो खिंचवाना है स्टूडियो के अंदर जाके, स्टूडियो खाली रहेगा तभी तो मेरा फोटो खिंचाएगा, नहीं तो लाइन में बैठना पड़ेगा अपनी बारी आने के लिए, राइट? ये डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाना है, डॉक्टर तभी देखेगा जब खाली होएगा, अदरवाइज लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है? सो रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इज vacating the surface sites at the surface of catalyst, ठीक है? और Yes, sir. सीओ हेबर्स प्रोसेस में क्यों यूज करते हैं, मतलब क्यों इसको रिमूव करना जरूरी होता है? द आंसर लाइज इन समथिंग लाइक दिस ओनली, इसी में से किसी एक में लाई करेगा, राइट? व्हाट कुड बी द मोस्ट सुटेबल आंसर विदाउट नोइंग एनीथिंग? व्हाट कुड बी द मोस्ट सुटेबल गेस? क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोचिए। इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम की तरफ और जाएगा। चलो एक इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, और बोलो। हाँ सर, CO2 एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, हो सकता है। CO2 H2O नहीं किसी के लिए। एब्जॉर्ब हो जाएगा H2O वगैरह के हाँ। साथ, ओके। नहीं, बाजू में एब्जॉर्ब होगा तो वो रिएक्शन को ऑल्टर करेगा। रिएक्शन को अल्टर करेगा, ऑल्टर करेगा। हाँ। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन हो गया। और थोड़ा सा सोचो, ये ध्यानीश आप भी सोचिए बच्चा। गुड यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं, मोड ऑफ टीचिंग अच्छा है, यू आर गिविंग ऑप्शंस, दीज आर ऑल सुटेबल ऑप्शन, जो नहीं पता होंगे तो इक्वली गुड लगेंगे सबको, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा सोचिए, और सोचिए थोड़ा सा।
सर वो कार्बन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। गुड। और एक चौथा ऑप्शन भी बता दो। हम्म, ओके सी महेश, आपने जो ऑप्शंस दिए ना, मतलब दे साउंड ओके, ठीक है, बट इस केस में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये मतलब अगर आपको कुछ नहीं भी पता है कि क्या काम है इसका, यू कैन स्टिल जज अ बिट इफ you know about Haber process, right? Haber process is for synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen, right? Okay. तो the chances of production of CO2 जो है वो कितना रहेगा, CO या CO2 का प्रोडक्शन चांसेस कितना रहेगा? What is your expectation? Chances कितना रहेगा in terms of quantity? Is it going to be produced in good quantity or very small quantity? Very small quantity. Right? कुछ impurities कार्बन के रह गए होंगे किसी रीजन से, वहां से ही बेसिकली आ सकता है, और तो कोई रास्ता है नहीं। CO is definitely not a major product, right? Or a major byproduct. क्या क्या? फिर हाइड्रोजन को हम लोग उससे रिएक्ट कराते हैं और मीथेन से रिएक्ट कराते हैं, तो वहां से कार्बन का एक उठा सकते हैं। मीथेन को स्टीम को रिएक्ट करा के हम लोग को हाइड्रोजन मिलता है बेसिकली। क्रैकिंग से ना, हाँ मीथेन या उधर से वो क्रैकिंग करते हैं जिससे हमको H2 मिलता है, तो वहां पे कुछ कार्बन हमारे पास आ सकते हैं, दैट्स ट्रू, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ कार्बन, बट वहां पर कुछ ही आएंगे ना, मेजॉरिटी तो नहीं आएगा ना। हाँ सर। बात समझ रहे हो? आई एम ट्राइंग टू पॉइंट यू टू थिंक इन सर्टेन डायरेक्शन। if that is not a mandatory byproduct or not a major byproduct, तो फिर इक्विलिब्रियम वाली चीज जो है ना, that cannot be applied to it. Is that okay? ठीक है। यस सर। हाँ इक्विलिब्रियम वाला लॉजिक हम तभी ला सकते हैं जब वो एक मेजर बाय प्रोडक्ट होगा, या दो चीजें फॉर्म हो रही हैं जिसमें से एक का प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है तो दूसरे वाले को मुझे रिमूव करना होगा, एंड प्रोवाइडेड कि उस वो जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट अगले स्टेप में कंज्यूम भी हो रहा हो। अगर इनकेस कंज्यूम नहीं हो रहा है तो दोनों को ही हम हटाते हैं, ठीक है ना? दोनों प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट को हटाते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में रिएक्शंस बढ़ते रहेगा, राइट? सो बेसिकली वो ऐसे इट साउंड्स गुड, ठीक है, द ऑप्शन साउंड्स गुड, बट इट इज नॉट रेलेवेंट इन दिस सर्कमस्टांस, ठीक है? दूसरा वाला जो आइडिया था, और दूसरा वाला क्या पॉइंट था तुम्हारा? पहला इक्विलिब्रियम पे वो बेस्ड था, दूसरा क्या था? वो फिर कैटलिस्ट के ऊपर आ जाएगा, कैटलिस्ट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा CO2 एंड CO कैटलिस्ट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम्म हाँ ठीक है, दैट इज
नहीं, बट तब कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब होएगा ये नहीं बोला था तुमने, कुछ और बोला था। एनीवे, और दिस साउंड्स टू बी अ गुड थिंग, क्योंकि सीओ जो होगा, या ध्यानेश का भी लॉजिक जो था, दैट इज क्लोज टू द एक्सप्लेनेशन। सीओ जो है वो कैटालाइटिक अमाउंट में ही प्रेजेंट है। When anything is present in a small amount and still it is being removed or it is being added, I mean small amount में अगर add कर रहे हैं या remove कर रहे हैं, so the reason can only be based on, or it can be close, or I mean the reason is going to be close to catalytic activity only. ठीक है, basically CO जो है that acts as a poison. ठीक है, एबर्स प्रोसेस का जो हमारा ये है कैटलिस्ट है, उसके ऊपर ये पॉइजन का काम करता है। आयरन मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है, और आयरन के ऊपर मोनोक्साइड अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, तो दैट एक्ट्स एज अ दिस थिंग इनहिबिटर, और इट एक्ट्स एज अ पॉइजन, and therefore we avoid presence of CO during Haber's process. ठीक है, okay, let's stop over here today.